Hello everyone, are you ready for our new subtopic? Yes, let us start. But before going to our next subtopic, I would like to explain your previous part. In our previous part, we have studied about the union list, state list, concurrent list and residuary power. Yes, हमने देखा था union list. In union list includes all the topic which related to country, and state list includes all topic which related to states, and concurrent list, in that list involves both the topic which related to union as well as state, and those topic which we are not including in both the list, both three lists, union list, concurrent list and state list, that we have seen in our residuary powers, and as well as we have seen the power of the judiciaries. तो हम इसको क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं कि विच आर द पावर ऑफ द जुडिशरीज के क्या पावर होते हैं, व्हाई वी आर कॉल्ड जुडिशरी एज अ एम्पायर, हम जुडिशरीज को एम्पायर क्यों बुलाते हैं. तो लेट अस सी. Question is here, judiciary plays an important role in Indian federalism. Justify the statement. What is the question? Judiciary plays an important role in Indian federalism. Justify the statement. The answer is first point. Judiciary with the Supreme Court at the apex is the sole interpreter of Indian Constitution. मीन जुडिशरी क्या है? सुप्रीम कोर्ट है. एट द एपेक्स मीन्स टॉप पे, सबसे टॉप पे. द सोल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है. कॉन्स्टिट्यूशन में इसे बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, टॉप लेवल पे रखा गया है. फर्स्ट पॉइंट इज जुडिशरी विद द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स इज द सोल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. It plays a pivotal role in the implementation of constitutional provision and procedure. Pivotal means it plays a pivotal role. means सर्वोच्चतम बेसिक रोल किया है, इसलिए implementation of the constitutional provision and procedure. means constitution में जो provisions दिए गए हैं, जो procedure दी गई है, वो properly implementation होती है कि नहीं, ये देखने का काम, सुपरविजन करने का काम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल, बेसिक रोल प्ले करता है जुडिशरी. थर्ड इज जुडिशरी administer both the union and the state laws which are applicable to the cases coming for education. Okay, it is called education. Okay, then जो जुडिशरी है वो एडमिनिस्टर करता है बोथ स्टेट लेवल लॉज को और यूनियन लॉज को, एंड आर एप्लीकेबल टू द केस कमिंग फॉर एडजुडिक्शंस. मीन जो भी उनके पास केस आते हैं, उस केस को सॉल्व करने का काम, उसमें एडमिनिस्टर करने का काम जुडिशरी करता है. एंड द डिस्प्यूट्स अबाउट द डिवीजन ऑफ द पावर्स आर सेटल्ड बाय द जुडिशरी. यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं among the state government, central government, that time the judiciary plays an important role as an empire role play करता है. Hence judiciary is considered as the guardian of the Indian federalism. Judiciary क्या है? Who is the guardian of the Indian federalism? The judiciary is the guardian of the Indian federalism. Okay, so question will come for 3 marks. That time you have to write this 4 points. Judiciary with the Supreme Court at the apex is the sole interpreter of Indian Constitution. It plays a pivotal role in the implementation of constitutional provision and procedure. Third is judiciary administers both the union and the state laws which are applicable to the cases coming for adjudications, and the disputes about the division of powers are settled by the judiciary. Hence judiciary is considered as the guardian of the Indian federalism. Okay, तो हमने इसमें जुडिशरीज के बारे में देख लिया और एज वेल एज हमारा क्वेश्चन भी कवर हो गया. Then come to our today's subtopic, and that is how is federalism practiced. फेडरलिज्म किस टाइप से प्रैक्टिस किया जाता है.
सी हाउ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, फेडरलिज्म के लिए क्या क्या किया गया इंडिया में। तो हियर आर 4 पॉइंट्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सेकंड इज लैंग्वेज पॉलिसी, थर्ड इज सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड लास्ट वन इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो वी विल स्टडी वन बाय वन, हम वन बाय वन देख लेते हैं इसको। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। But constitution provision are necessary for the success of the federalism, but these are not sufficient. इसमें कहा गया कि constitution provision necessary है, अगर हमें country में federalism लाना that time constitution provision are necessary, but these are not sufficient. सिर्फ यही sufficient नहीं है. In our India we have seen the federalism. हमारे इंडिया में हम देख चुके हैं कि federalism है. Or in India, here are the federalism, but not only by the provision of the constitution, but there are the some other reason that are necessary for the federalism, and that reason are among them one of the reason is the democratic nature of democratic politics. Democratic politics का किस टाइप का नेचर, किस टाइप से democratic politics है। Just this ensure that the spirit of federalism, जो spirit देता है federalism को, respect for diversity and the desire for living together, these all things are very very important for the federalism. So among them first see the linguistic states. Linguistic state is the major first and major test for the democratic country, democratic or federalism country. सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए किस लिए कि अगर कंट्री को फेडरलिज्म बनाना है तो दैट टाइम लिंग्विस्टिक स्टेट्स इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर सीइंग इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ऑफ 1947 एंड 1930, you are seeing the so many changes in the extension of the India. उसमें आपको बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप 1947 का मैप देखोगे और 1913 का मैप देखोगे, विच इज इन योर बुक पेज नंबर 18, देखिए इसमें इंडिया इन 1947 के समय का इंडिया कैसा है। ओके, यहाँ पे आपको दिया है पार्टीशन के बारे में बताया गया है। तो देखिए इंडिया 1947 का इंडिया ये था, 2013 का इंडिया आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो हियर आर ड्रास्टिक चेंजेस बिटवीन द 1947 एंड द 2013. You will be surprised by the change of political map of 1947 and the 2013. अब क्या हुआ, many old states have vanished. जो पुराने old states थे they have vanished and the new states have been created. जो पुराने states थे वो खत्म हो चुके थे, नए states बनाए गए थे. Then boundaries, areas also change, वो भी change हो चुका था. Areas, boundaries and the name of the states have been changed, वो भी change कर दिया गया था. In 1947 the boundaries of the India, the several old states boundary जो थी इंडिया वर चेंज in order to create new states. में जो पुराने states थे उनकी जो बाउंड्री है वो भी चेंज कर दी गई थी, किसके लिए, नए states बनाने थे, इसकी वजह से. This was done to ensure that people who spoke the same language live in the same states. क्या किया गया कि सेम लैंग्वेज बोलने वालों का एक स्टेट्स बनाया गया, अलग अलग स्टेट्स बनाए गए कि मीन्स एक लैंग्वेज में, एक स्टेट्स में एक ही लैंग्वेज, अदर स्टेट्स में अदर, जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, देखे हमने महाराष्ट्र में मराठी, इस टाइप के क्या किया गया, लैंग्वेज के थ्रू स्टेट्स बनाए गए. बट ऑल स्टेट्स आर नॉट फॉर्म जस्ट लाइक अ लैंग्वेज, अदर स्टेट्स आर फॉर्म बाय दी other categories or other qualities just like the ethnic composition
पोजीशन, वहाँ का इथनिक देखा गया, वहाँ का कल्चर देखा गया, वहाँ का ज्योग्राफी एरिया दिखाया गया, और इस तरीके से भी कई स्टेट्स फॉर्म किए गए। द एग्जाम्पल ऑफ दैट स्टेट्स आर नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। नागालैंड और उत्तराखंड और झारखंड इसको इथनिक, कल्चर और ज्योग्राफी एरिया के तरीके से इसे फॉर्म किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बनाए गए। बट व्हेन द स्टेट्स आर फॉर्म बाय द लैंग्वेज के थ्रू जब स्टेट्स फॉर्म किए गए, दैट टाइम द लीडर ऑफ इंडिया फियर दैट कि ये क्या हो सकता है, इट्स क्रिएट्स अ प्रॉब्लम अमॉन्ग द सिटीजन। ये क्या कर सकता है, लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये, और क्या कर सकता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, कंट्री के टुकड़े कर सकता है, ऐसे लोगों को लगना शुरू हो गया। तो दैट टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड दिस टाइप ऑफ आइडिया। ये जो आइडिया थी कि हम लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स बनाएंगे, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, कुछ समय के लिए मना कर दिया था। बट आफ्टर सम टाइम इट वाज शोन दैट, ऐसा देखने को मिला था कि जब लैंग्वेज स्टेट्स इट्स क्रिएट अ यूनिटी अमॉन्ग द पीपल। ये लैंग्वेज स्टेट्स फॉर्म किए गए तो इसने लोगों के बीच में डिसइंटीग्रेशन नहीं क्रिएट किया, तो इससे लोगों को उनके बीच में क्या आई, यूनिटी आई। लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा कि हम एक स्टेट्स में रहने वाले हैं, हम एक ही लैंग्वेज बोल रहे, तो वी आर सेम, हम कैसे हैं, सेम है। और लोगों के बीच में एक में के लिए फीलिंग आने लगी और लोग और ज्यादा यूनाइट होने लगे। तो इस तरीके से क्या किया, स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। इट ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर, और इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी इजी हो गया। किस बेसिक पे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिक में। लिंग्विस्टिक मींस लैंग्वेज, मींस एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का एक स्टेट फॉर्म किया गया। इससे लोगों के बीच में यूनिटी आने लगी, एंड इट इज सुटेबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। ये किसके लिए सुटेबल होने लगा, एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ ऐसे स्टेट्स है जो इथिक, कल्चर और ज्योग्राफिक एरिया से फॉर्म किए गए, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो गॉट इट, आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर है लिंग्विस्टिक स्टेट का, जो किसके अंदर है कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। हमने फर्स्ट जो पॉइंट है, टॉपिक है, सब टॉपिक को देख लिया। देन सेकंड इज लैंग्वेज पॉलिसी। अब लैंग्वेज पॉलिसी क्या होता है ये भी देख लेते हैं। Then the second test for the Indian Federation is the language policy. Language policy क्या थी कि our constitution did not give the importance or as a national language to any other language. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को भी नेशनल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर किया। हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, बट इट इज अ मदर टंग ऑफ द ओनली 40% पीपल। कितने लोग हिंदी बोलते हैं? Only 40% people are talking Hindi. It's not a national language. It is only a official language. Then so there were so many protection for the other language. इसीलिए बहुत सा protection other language को भी मिल गया. And there are the 21 languages है. That languages are called scheduled language. उसे क्या कहा जाता है? शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से शेड्यूल लैंग्वेज करके कहा गया है। अब अगर इफ अ कैंडिडेट एंड इन एन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन मे ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी अदर लैंग्वेज। अगर कोई कैंडिडेट ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसे कोई भी लैंग्वेज में, वो अपने सुटेबल लैंग्वेज में उस एग्जाम को फेस कर सकता है। ये प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। स्टेट्स हैव टू देयर ओन लैंग्वेज। स्टेट की खुद की लैंग्वेज होती है, जैसे अभी मैंने बताया पंजाब की पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, हरियाणा की हरियाणवी। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ है, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स बने हैं। तो स्टेट की खुद की लैंग्वेज होती है। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम अपने खुद के लैंग्वेज में कंडक्ट करते हैं। ये भी प्रोविजन दिया गया कि स्टेट्स को खुद के लैंग्वेज में वो कुछ जो एग्जाम्स होती है वो एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। बट सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम अप्लाई करते हैं, दैट टाइम यू कैन टेक द पार्टिसिपेट इन द एनी लैंग्वेज। आप कोई भी लैंग्वेज में पार्टिसिपेट ले सकते हो, वहाँ पे आपको लैंग्वेज बाउंडिंग नहीं होती। जो आपकी मदर टंग है उसमें
में, या जो लैंग्वेज का आपको ज़्यादा नॉलेज है आप वो लैंग्वेज में आप अप्लाई कर सकते हो। Okay, unlike the Sri Lanka, the leaders of our India take a very cautious attitude towards the यूज ऑफ हिंदी। उन्होंने हिंदी की यूज को बहुत सीरियसली लिया। दे वॉन्ट टू टॉक ओनली हिंदी। वो क्या चाहते थे? ओनली हिंदी। दे वॉन्ट टू डिक्लेयर हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, सो दे स्टॉप द यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन 1965। उन्होंने स्टॉप कर दिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, जो भी है क्या होना चाहिए उसमें हिंदी का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप, मींस ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश को स्टॉप कर दिया गया था। बट हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स वांट टू इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती थी दैट टाइम, वो सोच रहे थे कि क्या होना चाहिए, इंग्लिश का यूज होना चाहिए। और इसलिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एडॉप्टिंग टू कंटिन्यू यूज ऑफ द इंग्लिश एंड द हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि हिंदी को भी और इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज करके डिक्लेयर कर दिया, ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप देखो कभी भी आप ऑफिशियल फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको हिंदी भी दिखती है और उसमें आपको इंग्लिश का भी, दोनों का यूज हुआ होता है, तो दोनों का आप यूज कर सकते हो इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। बट मेनी क्रिटिक थिंक्स दैट दिस सॉल्यूशन इन द फेवर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत से जो क्रिटिक्स थे उन्हें लगने लगा कि ये जो है ज्यादा रिस्पॉन्स किसे दे रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को दे रहे हैं। But Hindi declared as an official language, but it does not mean that the central government impose the people to talk only Hindi, Hindi, Hindi। ये ऐसा उन्होंने इम्पोज नहीं किया कि कोई भी स्टेट्स के लोग रहे तो उन्हें हिंदी ही बोलना है, इम्पोज नहीं किया। सिर्फ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी भी ये फोर्स नहीं किया कि तुमको हिंदी ही बोलनी है। तो हिंदी ऑन द स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, मीन्स अलग स्टेट्स के लोग अलग लैंग्वेज बोलने लगे। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय आवर लीडर इज वेरी helpful, help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in। मीन्स जो हमारे लीडर ने दूरदृष्टि, दूर का सोचा था, हमारे लीडर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा उसको आज हम अप्लाई कर रहे हैं और हर कोई इससे खुश है। इससे आप इमेज कर सकते हो कि हमारे लीडर ने ये सारी जो चीजें हैं सोच समझ के बनाई हैं कि आगे ऐसा प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट ना हो जैसे कि श्रीलंका में हुई थी, उस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो करके हमारे लीडर ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही प्रोविजन दिए गए हैं, ऐसे ही प्रोसीजर की है कि जो हर पर्सन के लिए, हर स्टेट के लिए, हर लैंग्वेज के लिए सुटेबल हो। तो यहाँ पे हमने देखा है कि लैंग्वेज पॉलिसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द फेडरलिज्म, फेडरल कंट्री। अगर आपको लगता है कि फेडरल कंट्री हो तो उस समय आपको लैंग्वेज पॉलिसी को भी इम्पोर्टेंट देना उतना ही जरूरी है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो इंडिया में किस टाइप से फेडरलिज्म प्रैक्टिस की गई थी। फर्स्ट तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इट्स द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द फेडरल कंट्री। देन सेकंड टेस्ट इज लैंग्वेज पॉलिसी, ये सेकंड टेस्ट है। देन थर्ड इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन कैसे होने चाहिए। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मींस, डिसेंट्रलाइजेशन मींस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का क्या किया गया है, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जो ऑलरेडी हमारे पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़े ही हो तो आपको इसको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Okay, I hope so you have understood very well this topic. Then we will meet to our next video. Thank you very much. Take care and bye bye.